सी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये आई थिंक हम लोगों ने सप्लाई पूरा कर लिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सी सप्लाई इंक्लूड्स section 7 subsection 1 clause A. It says supply includes all these things. Subsection 1 clause B, it says about import, which is whether or not in course or furtherance of business. Subsection C, schedule 1, subsection D, schedule 2. We have already covered in detail schedule 1 and 2 and 3 also, because it is a negative list and it comes under section 7 subsection 2. It was in detail that we did schedule number 1 with these 4 points and with examples. Also, I explained you about related and distinct persons. Okay, and in schedule 1 there is importation of service but without consideration. So maybe a head office receiving services from branch office outside India or vice versa. Okay, so any establishment outside India. Okay, next is importation of service whether or not in course or furtherance of business. It would be treated as supply and the tax will be payable by the recipient under RCM method. Schedule 2, I already told you to refer this table. We covered it in our lecture also. I tried to explain you each and every point. Okay, and I hope you must have revised. And please see if you have any doubts, we can clear it before we start with practical questions on this chapter. Okay, so this was the list and we had 7 points segregated as to recognize as to whether it is supply of goods or supply of services. Okay, and we have also done schedule 3, that is a negative list. We have done it in chapter number 2 also, but here we had done it a bit in detail. Okay, this is schedule 3, the list of the items that are included in schedule 3, and it says it is a negative list. Negative list itself means that it is not chargeable under GST. And it was just a preview of the chapter. Okay, चार्ट में हमने बता दिया उसको कि क्या क्या हमने यहाँ पर देखा, चैप्टर में पढ़ा. Okay, so today we are going to start with practical questions. Okay, see, before starting with practical questions, let me see if you have any doubts regarding the chapter. Please see if you have any doubts, we can clear it before we start with practical questions. Let us start with practical questions. See, first, CMA Ram, a practicing cost accountant, carries out activity of accounting, auditing, filing returns and certifying documents and so on, so forth. तो आप मुझे बताइए, is it I mean it can be called as, whether it can be called as supply or not. आप मुझे बताएंगे इसको क्या हम लोग ट्रीट करेंगे, ये सप्लाई है कि नहीं है. ये सप्लाई है. Why it is supply? Because it is to be treated as if this is for regular course of the business. आपको ये सारी एक कॉस्ट अकाउंटेंट को ऑडिटिंग करना, फाइलिंग करना रिटर्न्स, ठीक है, और अकाउंटिंग करके देना कस्टमर्स की, डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करना, ये सारा उसके बिजनेस के कोर्स में आता है. मतलब जब तक वो ये नहीं करेगा तब तक बिजनेस चलेगा कैसे उसका. यही सारी चीजें तो हैं जो उसको एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट उसको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी अपने क्लाइंट के लिए. अ क्लाइंट कैन बी अ बिजनेस फर्म, ठीक है. तो जो सामने वाला बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग, उसकी ऑडिटिंग मेंटेन करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो भी चीजें दी हुई हैं वो सारा कोर्स ऑफ द बिजनेस है और उसके लिए वो कंसिडरेशन लेता है.
तो ये डेफिनेशन जो सप्लाई का हमने डेफिनेशन पढ़ा है, इट शुड बी कोर्स ऑफ द, इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ, ये फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस तो नहीं है, लेकिन ये कोर्स ऑफ द बिजनेस के लिए है। ठीक है, मतलब यही तो है जो बिजनेस के कोर्स में आते हैं। बिजनेस का आपका कोर्स क्या है, मेन आपका बिजनेस का कोर्स क्या है? अकाउंटिंग करना, ऑडिटिंग करना, फाइलिंग रिटर्न्स करना। एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए क्या होता है काम, यही तो होता है। ठीक है, चलो अभी आगे देखो। इट इज सप्लाई, मतलब आपको आंसर कैसे करना है? दीज एक्टिविटीज कैन बी कंसिडर्ड एज परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, हेंस इट इज टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. So a question will be asked as state whether it is to be considered as supply. मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये सप्लाई कंसिडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन. Measures X Limited manufacturing of motor cars. Company used to sell more number of cars in southern India. In the view of demand in southern India, company intends to establish a manufacturing unit in Chennai. क्योंकि वहां से बहुत डिमांड है ना, इसीलिए उन्होंने सोचा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम चेन्नई में क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर दें, क्योंकि फिर नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत खर्चा आ रहा है ना, बार बार ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ रही है, वहां पे डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट्स की, कार्स की. तो उन्होंने सोचा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम चेन्नई में इस्टेब्लिश कर देते हैं, वहां पे कार्स बनेंगी और बाजू बाजू में बिकेंगी, वो इजी हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा. मेशर्स एक्स लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर वाई. अब एक्स लिमिटेड की जो कंपनी है, उन्होंने मिस्टर वाई को अपॉइंट किया एज अ कंसल्टेंट फॉर सर्चिंग, इवैल्यूएटिंग, ओके, इवैल्यूएटिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, और यहाँ पे ओके, सॉर्टिंग प्लेसेस फॉर प्रोस्पेक्ट टारगेट्स. मतलब उनको मिस्टर वाई को काम क्या दिया कि आप इवैल्यूएट कीजिए कि वहाँ पे मेरा बिजनेस कितना चलेगा, कौन सी प्लेस पे मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग का ये फैक्ट्री होनी चाहिए. सॉर्टिंग प्लेसेस मतलब कौन सी प्लेस पे मेरा ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो सकता है. ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें भी इवैल्यूएट कीजिए, कितने कस्टमर्स मेरे बढ़ सकते हैं वहाँ पे, एंड मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टारगेट्स क्या हो सकते हैं. ठीक है, फाइनली कंपनी डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश अ यूनिट. उसका नाम रखा उन्होंने अम्बतूर इंडस्ट्रियल एस्टेट एट चेन्नई. उन्होंने फाइनली क्या किया, चेन्नई में एक यूनिट इस्टेब्लिश किया. अब मिस्टर वाई को काम दे दिया. मिस्टर वाई कैरिड आउट ऑल द एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज फॉर सेटिंग अप दैट यूनिट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑफ मेशर्स एक्स लिमिटेड. सो यू टेल मी वेदर इट इज सप्लाई और नॉट. Is it supply? Yes, definitely it is supply. Why? Because आप अभी बिजनेस को बढ़ा रहे हैं. देखो, एक सेम बिजनेस को आप चेन्नई में सेटअप कर रहे हैं बिकॉज वहां पे आपको इजीली गुड्स को सप्लाई करना है. ठीक है, वहां पे डिमांड ज्यादा है, इसीलिए वहां पे गुड्स को इजी सप्लाई करने के लिए आपने बिजनेस को बढ़ाया. कैसे बढ़ाया? एक ब्रांच सेटअप किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का चेन्नई में. तो ये तो आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया. आप देखो, मैंने आपको जब मैं आपको ये बता रही थी ना कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था. कोर्स मतलब जो बिजनेस का मेन कोर्स है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने मशीन खरीदी, तो वो आपका कोर्स ऑफ द बिजनेस हो गया. ये मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले, अभी रिपीट क्यों कर रही हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू कैन रिवाइज ऑल दोज थिंग्स विच वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स. है ना, हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि अगर गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है किसी एक पर्सन को, बिजनेसमैन को, तो मशीन खरीदनी पड़ती है. तो मशीन खरीदना इज कोर्स ऑफ द बिजनेस, वो उसके कोर्स में आ गया. ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि अगर बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्रांच ओपन कर रहे हैं, तो वो फर्दर एंड्स ऑफ बिजनेस में आ गया. तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है चेन्नई में ब्रांच ओपन करने का, दैट इज फर्दर एंड्स ऑफ बिजनेस. वाई कैरिड आउट, वाई को आपने क्यों अपॉइंट किया? क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज फर्दर एंड्स ऑफ द बिजनेस के लिए कर रहे हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए. तब तो आप सप्लाई कर पाओगे कार्स को. ठीक है, तो हेंस इट इज सप्लाई. ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो. अब आंसर आप मुझे बताएंगे. मेशर्स एक्स सोल्ड लैपटॉप, सोल्ड
देखो सेल वर्ड आ रहा है, सेल वर्ड हमारे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंडर में जितने भी सारी चीजें हैं सेल्स में इंक्लूड, उसमें वर्ड सेल आता था। ठीक है, तो आपको देखो एक एक वर्ड देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेशर्स एक्स सोल्ड लैपटॉप वर्थ ₹1 लाख एंड इशूड इनवॉइस इन द फेवर ऑफ वाई। मतलब आपने वाई को 1 लाख के लैपटॉप बेचे, 1 लाख का लैपटॉप बेचा और इनवॉइस इशू किया। इनवॉइस इशू करना मतलब बिल इशू करना, सेल्स बिल जिसे कहते हैं। इनवॉइस मतलब सेल्स बिल। टैक्स इनवॉइस मतलब जिसमें टैक्स लगाकर आप उसको बेचते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं इनवॉइस। तो अब आप मुझे बताएं कि आइए सप्लाई है। कम ऑन, गिव मी क्विक आंसर्स, अनम्यूट करके आंसर दो, यस और नो। यस। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, ये सप्लाई है बिकॉज ये सेल कर रहा है। ये देखो सॉल्यूशन देखो, नाउ ओनरशिप ऑफ द लैपटॉप ट्रांसफर टू मिस्टर वाई, सच ट्रांजैक्शंस इज कवर आर कवर्ड इन सेल। हमारे लिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो सेल है, और सेल में क्या होता है, टाइटलशिप ट्रांसफर हो जाती है। मतलब आप ये गुड्स का टाइटल भी उसको उसको ही दे रहे हैं जो खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स लेविएबल अंडर जीएसटी। यस, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स लेविएबल अंडर जीएसटी। ठीक है, मतलब इस पे जीएसटी चार्ज होती है, क्यों, क्योंकि ये सप्लाई में इंक्लूड है। ठीक है ना, क्यों इंक्लूड है, क्योंकि ये हमारा क्या कह सकते हैं इसको, सेल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस्टर एक्स इज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब होता है, इनका बिजनेस ये है कि अगर किसी कंपनी को बंद होना है ना, बंद मतलब लिक्विडेट होना है, शट डाउन करना है बिजनेस। लिक्विडेट का मतलब शट डाउन कर देना। तो अगर किसी कंपनी को शट डाउन करना है बिजनेस, तो उसकी सारी वैल्यूएशन करना वो सारा कुछ काम करना इनका है, मतलब ये इनकी कंपनी वो काम करती है। ये वैल्यूअर्स हैं एक्चुअली, ये वैल्यूअर होना चाहिए। एनीवेज, मिस्टर एक्स इज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रोवाइडेड वेरियस सर्विसेज लाइक, कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विद द हेल्प ऑफ वैल्यूअर्स, इनवाइटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द टेंडर्स, मतलब कौन खरीदने के लिए रेडी है आपकी कंपनी को। अगर हम शट डाउन कर रहे हैं तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितने में बिकने के लिए रेडी हैं, मतलब सामने वाला एसेट्स एंड लायबिलिटीज को खरीदने के लिए कितने में रेडी है। टेंडर्स मतलब ऑप्शंस, कोटेशन प्राइजेस, सेलिंग एसेट्स, मेकिंग पेमेंट टू द बोरोवर्स, अभी जो हमारी कंपनी के रह गए हैं बोरोवर्स उनको कितनी पेमेंट करनी है, कैसे डाउन कैसे बाकी की बची हुई आउटस्टैंडिंग पेमेंट निपटानी है। ये सारे जो भी सर्विसेज हैं ये आपको मिस्टर एक्स दे रहा है। आप मुझे बताएं क्या वो सप्लाई है, यस और नो। क्या ये सारी सर्विसेज सप्लाई में आती हैं कि नहीं आती हैं। गुड्स नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। ठीक है, अब ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है कि सप्लाई नहीं है, वो आप मुझे बताइए। कम ऑन जल्दी, यस नो कुछ तो आंसर दो। क्या समझा इसमें से, आपको ये सारी सर्विसेज जो मिल रही हैं ये क्या समझा आपने इसमें से, ये सप्लाई है कि नहीं है। यस डेफिनेटली इट इज सप्लाई। क्यों, क्योंकि कंसिडरेशन चार्ज करेगा ना इनके लिए, फ्री में थोड़ी ना करेगा, है ना, कंसिडरेशन चार्ज करेगा। एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर एक्स आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज इट इज फॉर कंसिडरेशन एंड कमीशन अर्नड बाय हिम इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो जो कमीशन वो चार्ज करे कंसिडरेशन के लिए, जो कुछ काम करोगे आप वो सप्लाई में ट्रीट होगा। ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ा है सप्लाई की डेफिनेशन में, पढ़ा है ना। ये देखो, एक मिनट मैं आपको ये चार्ट बताती हूँ जिसमें हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्स नहीं पढ़ा था, इंसिडेंस वाला। रुकिए मैं आपको बताती हूँ, कहीं पे भी डाउट नहीं आना चाहिए, पूरा क्लियर करके फिर आप मतलब ऐसे समझो पूरा क्लियर हो जाएगी। देखिए, फॉर कंसिडरेशन इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब टैक्स कब लगाई जाएगी, ये सारी सिचुएशन में टैक्स लगाई जाएगी। जब सप्लाई होगा, जब टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज बेचे जाएंगे, जब टैक्सेबल पर्सन को दिए जाएंगे कि आप बेचिए टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर अगर वो कंसिडरेशन चार्ज करता है और वो बिजनेस के लिए कर रहा है या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहा है, विद इन अ टैक्सेबल टेरिटरी कर रहा है, मतलब इंडिया की बाउंड्रीज में। ठीक है, एक्सपोर्ट किया तो आपको पता है एक्सपोर्ट हमारा जीएसटी के परव्यू से बाहर है, जीरो रेटेड टैक्स है। इंपोर्ट होगा तो चलेगा क्योंकि टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आ गया ना वो गुड्स। तो बस वही चीज़ है।
इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो हमने पहले पढ़ा है, ये वो उसको क्लियर करता है। ठीक है, कंसिडरेशन के लिए आपने किया ना ये सारा कुछ, तो ये सप्लाई मतलब आपको ना ये 2 मार्क्स के लिए कैसे लिखना है, पहले तो आंसर करना है वेदर इट इज सप्लाई और नॉट। तो यस इट इज सप्लाई, और अगर वो सप्लाई है तो रीजन क्या है। जैसे पहले में देखो रीजन क्या था, कोर्स ऑफ द बिजनेस, फिर सेकंड में रीजन था फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, थर्ड में आपका रीजन था सेल कर रहा है, तो सेल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, जो सेल होता है वो सप्लाई में इंक्लूड होता है, देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड, है ना, तो ओनरशिप भी तो ट्रांसफर हो रही है। तो आप रीजन अपने हिसाब से उसको बनाकर लिख सकते हैं, सेक्शन नहीं भी याद पड़ता है दैट इज फाइन, नॉट टू वरी। ठीक है, ऐसे रीजंस आपको बनाने पड़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, Mr. A, being a dealer of furniture, dealer of furniture, huh? Deliver the goods to the branch office of Messrs X Limited. अब Messrs X Limited एक कंपनी है, ध्यान से सुनो, समझो मिस्टर ए, मैं, ठीक है, अब मेरा काम है फर्नीचर बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना फर्नीचर की। अब मेशर्स एक्स लिमिटेड मतलब एक्स कंपनी ने मुझे कॉल किया, बोला मेरा जो ब्रांच ऑफिस है ना वहां पर आप फर्नीचर डिलीवर करो, बनाकर मैन्युफैक्चर करके फर्नीचर को वहां पर डिलीवर करो। किसका ये ऑर्डर था, किसके डायरेक्शंस पे किया, मेशर्स एक्स लिमिटेड के डायरेक्शंस पे किया। मेशर्स एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस है, लेकिन हेड ऑफिस में फर्नीचर नहीं चाहिए मुझे, कहाँ चाहिए, ब्रांच ऑफिस में, होगी कहीं पे, ब्रांच ऑफिस होगी कहीं पे आमने सामने, ठीक है। तो मिस्टर ए को बोला गया कि आप फर्नीचर बनाकर मेरी ब्रांच ऑफिस में भेज दो, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई फर्नीचर इज बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस मेशर्स एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस। बताएं ये सप्लाई है कि नहीं है, कम ऑन जल्दी, यस और नो, फटाफट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो आंसर रॉन्ग होगा या तो राइट होगा, एटलीस्ट आप आंसर तो दो। Yes. Yes, very good. Yes, it is supply. It is considered as supply because Mr. A is liable to pay GST. क्यों क्यों liable to pay GST? क्योंकि वो फ्री में सर्विसेज थोड़ी ना दे रहा है। मिस्टर ए ने फर्नीचर सप्लाई किया आपको ब्रांच ऑफिस में, आपकी कंपनी की एक ब्रांच ऑफिस है, होगी कहीं पे, प्लेस तो बताई नहीं है, प्लेस बता देंगे तो बता देंगे हम IGST लगेगा कि CGST और SGST लगेगा, प्लेस बता देंगे तो हम IGST बताएंगे ना या SGST बताएंगे। इन्होंने प्लेस नहीं बताई है, लेकिन इतना तो पता है ना कि किसी कंपनी के ब्रांच ऑफिस में मुझे फर्नीचर बनाकर बेचना है। अब ये सप्लाई ऑफ फर्नीचर हो गया, तो सप्लाई ऑफ फर्नीचर तो मैं तो कंसिडरेशन चार्ज करूंगी ना, ठीक है। मिस्टर ए इज लाइबल टू पे GST ऑन द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम मेशर्स एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस। हेड ऑफिस प्राइस पे करेगा, किस चीज की प्राइस पे करेगा, फर्नीचर खरीदने की। तो जो फर्नीचर खरीदने की प्राइस मिस्टर ए को मिल रही है उसके ऊपर GST तो लागू है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कंसिडरेशन के लिए किया गया। ओके नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट है आपका गुड्स सेंट फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ रिटर्नेबल बेसिस, इज इट सप्लाई, टेल मी। अगर हमने गुड्स को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल के लिए भेजा और फिर हमने उनको बोला भेज देना वापस, रिटर्नेबल बेसिस, वापस जरूर भेजना क्योंकि ये सिर्फ ट्रायल के लिए गुड्स हैं, ठीक है, सिर्फ ट्रायल के लिए। तो आप मुझे बताएं ये सप्लाई है कि नहीं। आज सपोज मैं No. एग्जाम्पल देती हूँ आपको, चलो मशीन, एक मशीन है जो आपको खरीदनी है, पर अभी आपको पता नहीं है ये मशीन कितना प्रोडक्शन करके देगी, कितना मतलब ऑटोमेटिक कितनी चल रही है, कितना कौन सा बटन कैसे प्रेस करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है। तो ट्रायल बेसिस के लिए मैंने आपको 3 दिन के लिए मशीन दे दी कि आप चला कर देखिए, आपको अच्छी लगी ये वाली मशीन तो आप ये वाली खरीदना, अदरवाइज मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं ये सप्लाई है कि नहीं। नहीं है मैम सप्लाई। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि आप इसके लिए कोई वेरी गुड, सभी ने आंसर दिया, वेरी गुड, नो कंसिडरेशन, वेरी गुड, क्योंकि इसके लिए ये ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपको बेचना है, सेल एक्सचेंज बार्टर
कुछ तो होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ना सेल हो रहा है, ना एक्सचेंज कर रहे हो आप, ना बार्टर सिस्टम है, यहाँ पे तो कुछ ही नहीं हो रहा। और ना कि आप कंसिडरेशन ले रहे हैं उनसे। 3 दिन के लिए अगर आप मशीन यूज करने के लिए दे रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन पे, तो आप कस्टमर से कुछ भी चार्जेस नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो आपसे कस्टमर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मशीन लेगा ही नहीं, किसी और कंपनी के पास चला जाएगा मशीन खरीदने के लिए। ठीक है ना, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना, बहुत सारी कंपनीज है उनके पास तो मशीन खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना कंसिडरेशन है और ना यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल है, तो ये सप्लाई नहीं हो सकता। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए। मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ जेरोक्स मशीन। आई होप स्क्रीन इज विजिबल। थोड़ा एनलार्ज करने की नीड है कि आपको विजिबल है, वर्ड्स विजिबल है ना प्रॉपरली? यस मैम। ओके बेटा, ओके। मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ जेरोक्स मशीन। ही ट्रांसफर द राइट, अभी ध्यान से सुनना, हाँ। ही ट्रांसफर द राइट टू ऑपरेट, मैं आपके नाम पे जेरोक्स मशीन नहीं कर रही हूँ। ओके, ही ट्रांसफर द राइट टू ऑपरेट द जेरोक्स मशीन टू मिस्टर बी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹10,000 पर मंथ फॉर 4 months। मतलब टोटल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला आप 4 महीने के लिए मेरी जेरोक्स मशीन ले लीजिए यूज करने के लिए, और आप मुझे 4 महीने का 10,000, एक महीने का 10,000 रुपए दे देना। मतलब टोटल 40,000 हो जाएगा। 10,000 पर मंथ और 4 महीने के लिए मतलब 40,000 हो जाएगा। हाउएवर द ओनरशिप ऑफ द मशीन इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनली द राइट टू यूज द मशीन इज ट्रांसफर्ड। टेल मी, इज इट सप्लाई? पीछे वाली लाइन थोड़ा ध्यान से, द ओनरशिप ऑफ मशीन इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनली द राइट इन द मशीन। हाँ, वेरी गुड। इसे ना लीज, देखो लीज बोल सकते हैं या फिर रेंट बोल सकते हैं, दोनों एक ही होते हैं पता है मुझे, लेकिन लीज में ना बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं वो लीज होते हैं। अब आप इसको लीज ना बोलकर रेंट बोलिए। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लीज ना बोलकर सिर्फ आप उसको रेंट बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि लीज में ना वो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जो 5-6 साल के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ना लीज होती है, हमेशा याद रखो। ये 4 months के लिए, मतलब ये रेंट है। आपने ना सिर्फ मशीन रेंट पे दे दी 4 महीने के लिए। आई बात समझ में साविनय? क्लियर है ना दोनों के बीच में फर्क क्या है? तो आपको रीजन तो बराबर लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो रीजन करेक्ट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगी ना उस पर, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, सो सॉल्यूशन कैसे लिखना है देखो। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, यस इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज लेविएबल टू जीएसटी बिकॉज इट इज द केस ऑफ रेंटिंग आउट द मशीन। आप इसे रेंट कर रहे हैं। एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, आप देखें ये वाला सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बोलता है इसमें रेंट इंक्लूड होती है। देखो लाइसेंस के नीचे रेंट दिख रहा है, इंक्लूड होता है वो। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े। बस इतना ही है सब में, यस नो एंड रीजन। सप्लाई वाले चैप्टर में सिर्फ आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो। Mr. C, a practicing cost accountant, provides services to Messrs A Limited. Messrs A Limited मतलब कंपनी है, ये लिमिटेड आ गया मतलब कंपनी हो गई। A dealer of the laptops. ध्यान से सुनना, Messrs A कौन है? कंपनी है। कौन सी कंपनी है? लैपटॉप के डीलर्स हैं वो। और मिस्टर सी कौन है? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। इन रिटर्न मेशर्स ए लिमिटेड, अब मिस्टर सी ने, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड की मिस्टर कंपनी ए को। तो अब कंपनी ए ने क्या किया, उसको ना मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट नहीं किया, कैश नहीं दिया, प्राइस नहीं दिया, मतलब कैश प्राइस नहीं दिया। तो क्या दिया? गेव मेशर्स ए जो कंपनी है गेव 2 लैपटॉप्स टू मिस्टर सी। Now you tell me, state whether it is the case of supply or not. Tell me, ये सप्लाई होगा कि नहीं होगा? और ये किसके लिए सप्लाई होगा? अगर सप्लाई है तो किसके लिए सप्लाई, कौन जीएसटी भरेगा?
कोई बता सकता है ये आंसर्स? चलो पहले आंसर दो, यस और नो, ये सप्लाई केस है कि नहीं? ये सप्लाई का केस है कि नहीं? यस, बिकॉज इट इज बाटर। सिर्फ रिंकू ने थोड़ी घाई कर ली, BARTER, बाटर। ओके, वेरी गुड रिंकू, ग्रेट जॉब। आप मतलब बिल्कुल डेफिनेशन समझ गए हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बोलता है बाटर, बाटर भी इंक्लूड होता है किसमें? किसमें? स्कोप ऑफ सप्लाई में, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में। वेरी गुड। तो अब मतलब ये डेफिनेशन देखते हुए अभी तो समझ में आ गया। अच्छा, ये सप्लाई है लेकिन दोनों के लिए सप्लाई है। अब क्यों दोनों के लिए? दोनों के लिए सप्लाई क्यों है? जो मिस्टर सी है ना, समझो मिस्टर सी आप हैं और मैं कंपनी, मेरी कंपनी का नाम है मेशर्स ए लिमिटेड। आप मुझे सर्विसेज दे रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट मुझे सर्विसेज दे रहे हैं, ऑडिटिंग अकाउंटिंग की सर्विसेज, मेरे अकाउंट्स रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हैं मेरी कंपनी के। ठीक है, तो ये तो टैक्सेबल सर्विसेज है। अच्छा, ये टैक्सेबल सर्विसेज हैं जो मिस्टर सी दे रहे हैं। अब जो मिस्टर ए दे रहा है लैपटॉप, लैपटॉप भी तो ये वो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर टैक्स लगाई जाती है। मतलब दोनों टैक्सेबल सप्लाई हैं और दोनों के ऊपर टैक्स लगाई जाएगी, क्योंकि ये वन वे सप्लाई नहीं हो रहा है, ये टू वे सप्लाई हो रहा है। हमेशा याद रखो, बाटर में ना टू वे सप्लाई होता है, बाटर सिस्टम में टू वे सप्लाई होता है। ठीक है, तो टू वे सप्लाई क्यों होता है ये? क्योंकि मैंने आपको जो सर्विसेज दी, मैंने जो गुड्स आपको दिए, लैपटॉप दिए आपको रिटर्न में, उतने सेम वैल्यू के आपने मुझे बोला 1 लाख, आप मुझसे 1 लाख चार्ज कर रहे हैं, आपके कॉस्ट अकाउंटेंट की जो सर्विसेज है ना, आप 1 लाख मुझसे चार्ज कर रहे हैं, तो मैंने आपको 50,000 के 2 लैपटॉप्स दे दिए, तो सेम पहला शर्त है सेम वैल्यू होनी चाहिए बाटर में। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है आपने कम वैल्यू का दिया तो बाटर नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ टैक्स लगाने के लिए सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो टू वे सप्लाई कर, ये केस टू वे सप्लाई है क्योंकि मिस्टर सी इज मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच आर टैक्सेबल एंड मिस्टर ए इज ऑल्सो मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। मिस्टर सी आपको टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, मिस्टर मेशर्स ए कंपनी जो है वो आपको टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहे हैं, लगेगी तो दोनों पे टैक्स। ठीक है, तो दोनों के लिए ये सप्लाई वे, इट इज टू वे सप्लाई। आंसर कैसे करना है? यस, इट इज सप्लाई एंड इट इज नोन एज टू वे सप्लाई। फिर नीचे आगे रीजन देना है, इट इज अ बार्टर सिस्टम because Mr. C is making taxable supply of services and Messrs. A company is making taxable supply of goods. Hence, it is the tax will be payable by both. ठीक है, अब मिस्टर एक्स अ डेवलपर ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, अ डेवलपर मतलब आप सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं, अज्यूम करिए मिस्टर एक्स आप हैं, अ डेवलपर आप एक डेवलपर हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बनाते हैं एंड अ होल्डर ऑफ लाइसेंस देयर ऑन, आपके हाथ में लाइसेंस है ये सॉफ्टवेयर बनाने का। लाइसेंस टू यूज द सॉफ्टवेयर वाज गिवन टू डिफरेंट क्लाइंट्स फॉर ₹18 lakhs। अभी जैसे टैली का सॉफ्टवेयर है, टैली अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है, एसएपी सैप का एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है ये भी एसएपी का, आपके हाथ में वो लाइसेंस है, लेकिन आप जब तक किसी को लाइसेंस देंगे नहीं ना तब तक वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते, आपकी कंपनी का लाइसेंस है ये। तो आप जब तक उनको लाइसेंस नहीं देते हैं यूज करने का तब तक वो नहीं यूज कर सकते हैं आपका सॉफ्टवेयर, उनको खरीदना पड़ता है लाइसेंस, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करने का उनको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो आपने लाइसेंस बेचे, बहुत सारे कस्टमर्स को बेचा, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को आपने लाइसेंस बेचा, उसके लिए आपने उनसे चार्ज किया 18 लाख रुपीस। स्टेट वेदर इट इज सप्लाई, क्या ये सप्लाई है? यस, इट इज सप्लाई बिकॉज लाइसेंस, वेरी गुड। ये देखो लाइसेंस किसी को देना कि आप मेरा है तो मेरा लाइसेंस पर मेरे नाम पे आप यूज कर सकते हैं, मतलब है तो मेरा सॉफ्टवेयर, लेकिन जब तक मैं ये मुझे सॉफ्टवेयर बेचना है ना, तो सॉफ्टवेयर बेचने के लिए लाइसेंस बेचना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइसेंस जब मैं किसी कंपनी को बेच रही हूँ है मेरे नाम का ही, मैं नाम ओनरशिप नहीं दूंगी उनको, पर फिर भी लाइसेंस तो दे रही हूँ, वो यूज तो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लाइसेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सप्लाई। ठीक है ना, सॉल्यूशन देखो कैसे लिखा हुआ है, इट इज द केस ऑफ सप्लाई अंडर लाइसेंसिंग बिकॉज इट इज द केस ऑफ लाइसेंसिंग, वेरी गुड। ठीक है ना,
Mr. X is liable to pay GST whether he transfers such right permanently or temporarily as the case may be. आप किसी को परमानेंटली भी लाइसेंस दे दो ना तो भी आपको टैक्स तो भरनी पड़ेगी, क्योंकि सप्लाई तो किया ना आपने, लाइसेंस बेचा तो सही ना, या ट्रांसफर किया या बेचा जो भी है, पर आपने तो लाइसेंस तो दे दिया, सप्लाई तो किया, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो हुई है। लाइसेंस इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, गुड्स में नहीं आते वो, आप सर्विस दे रहे हो, लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करने की आप ये सर्विस दे रहे हो उनको थ्रू लाइसेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलिया ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, अ ट्रैवल एजेंट, ये ना ये कंपनी है आलिया ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये ट्रैवल एजेंट कंपनी है, ठीक है, ये मतलब कंपनी नहीं बोल सकते, ये ट्रैवल एजेंट है। बुक्स टिकट फॉर अ कस्टमर मिस्टर जेड, मिस्टर जेड के लिए उन्होंने टिकट बुक करी, ट्रैवल एजेंट है ये, ठीक है, तो ये ट्रैवल एजेंट ने क्या किया, बुक टिकट्स बुक करके रेज किया इनवॉइस, मतलब बिल बनाया, टैक्स इनवॉइस ऑन द कस्टमर मिस्टर जेड, बिल बनाया ना, जेड के नाम पे बिल बनाया, क्यों बिल बनाया, क्योंकि उन्होंने टिकट बुक करवाई मुझसे फॉर ट्रांस, क्यों टिकट बुक कराई, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर ऑफ ₹10,000। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब आपने मुझसे बुक करवाई टिकट, मैं ट्रैवल एजेंट, आप मिस्टर जेड, आपने मुझसे बुक करवाई टिकट, एयर टिकट, ठीक है, प्लेन की टिकट बुक करवाई 10,000 की, तो मैंने आपसे कमीशन चार्ज किया 500 रुपए, मतलब आप मुझे टोटल कितना पे करेंगे, मतलब मैंने इनवॉइस में क्या दिखाया, 10,000 रुपए की टिकट है और कमीशन है 500 रुपए, 10,000 इज एयर टिकट, ओके, दैट आई हैव बुक्ड इट फॉर यू, मैंने अपने जेब से निकालकर 10,000 रुपए आपके लिए खर्चा किया, ठीक है, मैं ट्रैवल एजेंट, और मैंने आपसे कमीशन भी चार्ज करना है 500 रुपए, तो आप मुझे टोटल कितना भरेंगे, 10,500 रुपए भरेंगे। स्टेट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन चार्ज ऑन जीएसटी विल बी लेविएबल, ऐसा अमाउंट बताइए जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगी, बता सकते हैं। अच्छा, ये सप्लाई है कि नहीं है, पहले वो बताएंगे, ये सप्लाई है कि नहीं है, ये मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ, मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं आपके लिए टिकट बुक कर रही हूँ, तो मैं टिकट बुक करने का काम कर रही हूँ, टिकट बेचने का काम नहीं कर रही हूँ। टिकट बेचने का काम वो फ्लाइट जिस कंपनी का आप समझो, कोई एक कंपनी ले लो, एयर इंडिया की आप फ्लाइट यूज करना चाहते हैं, सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, वहां की टिकट लेना चाहते हैं, तो एयर इंडिया आपको टिकट बेच रही है, बेचने का काम प्रोडक्ट बेच रही है वो, लेकिन आप, मैं जो आपको दे रही हूँ वो सर्विस दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं तो आपके लिए सिर्फ टिकट बुक कर रही हूँ ना, ठीक है, तो ये मैंने आपको सर्विसेज दी, सबसे पहली बात तो ये सर्विस है। अच्छा, ये सर्विस में सप्लाई है कि नहीं है, ये सप्लाई ट्रीट होगा कि नहीं होगा, कम ऑन फास्ट, यस यस, ये सप्लाई ट्रीट होगा, वेरी गुड रिंकू, बिकॉज इट इज फॉर कंसिडरेशन, वेरी गुड, बिकॉज इट इज फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, अब आप मुझे ये नेक्स्ट आंसर ये बताएं कि कौन से अमाउंट पे जीएसटी चार्ज की जाएगी, आपने मुझे टोटल पेमेंट किया 10,500, अब मैं 10,500 पे टैक्स लगाऊं कि नहीं लगाऊं, कौन से अमाउंट पे टैक्स लगाऊं, वो आप मुझे बताएं, जीएसटी किस पे लगाई जाएगी, कितने अमाउंट पे जीएसटी लगाई जाएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब डाउट ही नहीं आना चाहिए, इतना सोचना ही नहीं चाहिए, चलो जल्दी फास्ट। यस रिंकू, आंसर कंप्लीट करो बेटा, आपने आधा आंसर दिया, यस इट इज सप्लाई, इट इज कंसिडरेशन, आधा आंसर और कंप्लीट करिए, 10,000 पे लगेगा पक्का, अखिल 10,000 बोल रहे हैं, ओके, और कोई आंसर, रिंकू में भी, ओके,